اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ. اور جیسے بتاتا چلو نعت آپ نے سنی, ایک نعت کمپٹیشن بھی ہوگا انشاءاللہ ہدایت ٹی وی پر ماہ رمضان کے دوران, اور تمام جو بچے ہیں اور شاید نوجوان بڑے بھی ہیں جو سب اس میں حصہ لے سکتے ہیں. تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا ہمارے آفس نمبر پہ. جو بھی حضرات اور جو بچے اور بچوں کی چھٹیاں بھی ہوں گی تو بھرپور وہ حصہ لے سکتے ہیں, بھرپور طریقے سے حصہ لے سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑا کمپٹیشن ہو رہا ہے جس کو ہوسٹ کریں گے ڈاکٹر عامر رضوی صاحب, اور ہمارے ججز موجود ہوں گے 3 ججز, اور ان 3 ججز میں سب سے بڑے جج تو ہمارے بیٹھے ہیں فاروق نظر صاحب, اور یہ جج ہوں گے سب سے بڑے جج. پھر وہ دھیان لوگوں کا ادھر چلا جاتا ہے افتخار چودھری صاحب کی طرح, تو وہ ویسے جج تو ججمنٹ ہمارے فاروق نظر صاحب ہوں گے اور بخاری صاحب ہوں گے, اور مسرور شاہ نام ہے جو جج ہیں, یعنی بھرپور انداز میں بچے بڑے آ سکتے ہیں. اور دن ہوگا فرائیڈے اور سیٹرڈے نائٹ 10:30 بجے. بس افطار آپ نے کرنی ہے, نماز پڑھنا ہے, اور ٹی وی کے آگے چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بچہ ہو بھرپور ویورز ووٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس میں. ہاں ویورز بالکل ووٹنگ بھی کر سکتے ہیں. موبائل نمبر آپ کو دیا جائے گا, آپ ووٹ بھی کر سکتے ہیں جس کی آواز آپ کو اچھی لگے. مطلب پورے رمضان یہ جو ہمارا کمپٹیشن ہوگا بہت زبردست ہوگا. اور سیکنڈلی اس کا ونر جو ہے اس کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا. تو آپ بھرپور طریقے سے اس پہ حصہ لیجیے گا. اب بڑھتے ہیں آج کا چھوٹا عمل عظیم ثواب, اور اس کی جانب جانے سے پہلے بتائیں گے نماز ٹائمنگ. لندن کے وقت کے مطابق نماز ظہرین ہے 1:06 پر, نماز ظہرین ہے 1:06 پر, نماز مغربین ہے 9:32 پر, 9:32 پر, اور کل کی نماز فجر ہے 2:41 پر. کل کی نماز فجر ہے 2:41 پر, نماز ظہرین ہے 1:06 پر, نماز مغربین ہے 9:32 پر, اور کل کی نماز فجر ہے 2:41 پر. یہ تھے نماز ٹائمنگ. اور بڑھتے ہیں آج کا چھوٹا عمل عظیم ثواب کی جانب. کافی چیزیں شامل ہیں آج کے چھوٹے عمل عظیم ثواب کی میں, اور کم وقت لیتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ 2 احادیث شیئر کرنا چاہوں گی. رمضان آ رہا ہے ماشاءاللہ, بابرکت مہینہ ہے. بالکل اپنی دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھیے گا. اور ظہر ہدایت جب ہوگا رمضان میں 1:30 سے 3 بجے, تو آپ کو قرآن پاک کی ہر سورہ کے فضائل بتائے جائیں گے, اور آیتوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. ظہر ہدایت میں چھوٹا عمل عظیم ثواب میں کون سی صورت آپ پڑھیں گے تو آپ کو کیا ثواب ملنے والا ہے, آپ کو کیا حاصل ہونے والا ہے. تو رمضان کا ظہر ہدایت جو ہے وہ بالکل مس مت کیجیے گا. اچھا, ہم رمضان میں لوگوں کے گھر افطار کرنے چاہتے ہیں, ہم کسی کو بلاتے ہیں. روزہ کھولنے کے کیا آپ کو فائدے ملیں گے, کھلوانے کے کیا فائدے ملیں گے, وہ ضرور رمضان میں بتائیں گے. لیکن آج چھوٹا سا عمل ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ آپ اگر کسی کے گھر روزہ کھولنے جاتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو بڑے فائدے مل رہے ہیں. نہ صرف فاروق بھائی روزہ کھلوانے والوں کو فائدے ملیں گے, جو ظاہر ہے بہت ہی بڑا ثواب ہے جو روزہ کھلواتا ہے, بلکہ روزہ کھولنے والا جو جا رہا ہے اس کے بھی بڑے فائدے اور ثواب ہیں. اور وہ کیا ہیں ہم آپ کے ساتھ تھوڑے سے وہ شیئر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے گھر افطار کرنا, تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے گھر افطار کرنا تمہارے 70 گنا یا 90 گنا روزہ رکھنے سے افضل ہے. سبحان اللہ. اور یہ کتاب ثواب الاعمال اور شیخ صدوق کی بہت ہی مشہور کتاب ہے, اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسلمان اگر دوسرے مسلمان بھائی کے گھر جاتا ہے اور روزہ کھولتا ہے تو مولا فرما رہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے گھر افطار کرنا تمہارے 70 گنا یا 90 گنا روزہ رکھنے سے افضل ہے. سبحان اللہ. تو بس ایک دوسرے کو بلائیے, ایک دوسرے کے گھر جائیے اور افطار کیجئے اور ثواب کمائیے. اس کے بعد ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے یہاں روزے کی حالت میں جائے, جو شخص اپنے کسی بھائی کے یہاں روزے کی حالت میں جائے اور اس کے یہاں روزہ کھول لے اور ان کو اپنے روزوں سے آگاہ نہ کرے. رمضان میں تو ویسے سب کو پتہ ہوتا ہے روزہ, یہ عام دنوں کے لیے بھی یہ حدیث ہے کہ آپ کا روزہ اور آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ نے روزہ وہاں افطار کیا ہے, تو مولا فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے آگاہ نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 1 سال کے روزے لکھے گا. سبحان اللہ. تو کسی کے یہاں روزہ افطار کرنا, اپنے رشتہ داروں کے افطار پہ جانا, کوئی آپ کو دعوت سے پہلے بڑھ کر جائیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں, بہت زیادہ ثواب ہیں, ہم کو بہت زیادہ ثواب ملے گا.
जी नाज़रीन, ये तो था कि हम जब रोज़ा खोलने जाते हैं तो उसका छोटा सा ये कमाल, हम जब जाते हैं तो हमें कितने सवाब मिल रहे हैं। अब बढ़ते हैं छोटी नेकी छोटा अमल अजीम सवाब की जानिब, और उसमें हम आपके साथ कुछ अहादीस शेयर करेंगे। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी बहुत पहले, पता नहीं मुझे याद भी नहीं आ रहा कि कितने मंथ पहले ये मैंने शेयर किया था, और उसको आज हम एक तरह से रिपीट करेंगे और कुछ उसमें नई चीज़ें भी शामिल होंगी। हम ख़वातीन क्या करती हैं, चीज़ें रख के भूल जाती हैं, और बाज़ औक़ात इतनी कीमती चीज़ें रख के भूल जाती हैं कि सारा घर जो है वो हम बिल्कुल जो है वो उलट पुलट कर देते हैं, बिल्कुल जो है ढूंढने जब जाते हैं सारा घर, तो हमें बिल्कुल वो चीज़ मिलती ही नहीं है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बाज़ औक़ात घर के कागजात रख के भूल जाते हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप रख कर भूल जाते हैं, और या आपकी कोई भी चीज़ जो खो गई है, मिल नहीं रही है, उसके लिए आपको क्या करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी जगह एक चीज़ भूल गया था और अब उसे याद आया है कि फ़लाँ चीज़ को फ़लाँ जगह भूल आया हूँ, तो वो सूरह वज़्ज़ुहा की तिलावत करे तो उस चीज़ के मिलने तक अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। हम ख़वातीन यही करती हैं, कहीं जाती हैं, बाज़ार में जाती हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई चीज़ भूल कर आ जाती हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम अपना बैग ही कहीं भूल आते हैं किसी के घर। बहुत से ऐसे हमने देखे हैं, हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं। तो अगर आपकी कोई कीमती चीज़ कहीं आप भूल कर आ गई हैं और अब आपको परेशानी कि जी उसमें बड़ी कीमती चीज़ थी, पता नहीं क्या होगा, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपको याद भी नहीं आ रहा है कि वो किधर है, तो फिर आपने सूरह वज़्ज़ुहा की तिलावत करनी है। तो वो आपकी जो गुमशुदा चीज़ है, जहाँ पे भी आप भूल कर आए, वो वहीं बिल्कुल हिफाजत के साथ रहेगी और आपके हाथ में ही आएगी। सूरह वज़्ज़ुहा की आपने तिलावत करनी है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर गुमशुदा शख्स का नाम लेकर कोई आपका रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, कोई गुम हो गया या रूठ के भी चला गया, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। अगर गुमशुदा शख्स का नाम लेकर सूरह वज़्ज़ुहा को लिखा जाए, फ़ोटोकॉपी फ़ोटो स्टेट नहीं, सूरह वज़्ज़ुहा को लिखा जाए तो वो अपने दोस्तों में सही और सालिम लौट आएगा। अगर कोई आपके रिश्तेदारों में जो है वो अगवा हो गया है, कोई बिछड़ गया है, मिल नहीं रहा है, कोई बच्चा गुम हो गया है, तो ज़रूर उनको ये बताइएगा कि वो सूरह वज़्ज़ुहा को लिखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी गुमशुदा शख्स होगा, वो कहीं पर भी होगा, वो सही और सालिम जो है वो अपने दोस्तों में और अपने अजीज़ों में लौट आएगा। सूरह वज़्ज़ुहा की हम बात करें, सूरह नंबर 93 है कुरान पाक की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुमशुदा चीज़ों के लिए, चीज़ें आपकी गुम हो जाती हैं, मिलती नहीं हैं, और ढूंढते रह जाते हैं, मिलती नहीं है, उसके लिए नादे अली पढ़नी है आपको 110 मरतबा। अभी गुमशुदा चीज़ की बात हो रही है तो नादे अली का भी जिक्र करते हैं हम कि 110 मरतबा 110 बार आपने विर्द करना है नादे अली का, तो आपकी जो भी गुमशुदा चीज़ है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी रिवायत के मुताबिक कि किसी गुमशुदा चीज़ की बाजियाबी के लिए सूरह वत्तीन का, किसी भी गुमशुदा चीज़ की बाजियाबी के लिए सूरह वत्तीन का 7 बार पढ़ना बहुत मुजर्रब है। सूरह वत्तीन आप 7 बार पढ़ें, आपकी कोई भी गुमशुदा चीज़ है ज़रूर वो मिल जाएगी, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं और आखिरी कॉल आपके साथ शेयर करते हैं, फिर बढ़ेंगे इसमें आज़म और नादे अली की जानिब। और आज का आपका आखिरी ये है कि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई ये चाहे, अगर ये कोई भी चाहे, कोई भी शख्स कि उसकी कोई चीज़ गुम ना हो, कोई भी चीज़ गुम ना हो, तो उसे चाहिए कि वो घर के चारों कोनों में 7 बार, घर के चारों कोनों में 7 बार इसमें मुबारका या मुईदो, इसमें मुबारका, इसमें आज़म या मुईदो पढ़े तो खुदावंद ताला उस घर को सलामत रखेगा और जो चीज़ गायब हो चुकी है वो वापस मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी कोई चीज़ भी गुम ना हो तो वो घर के चारों कोनों पर खुदावंद ताला का बहुत ही खूबसूरत नाम, इसमें मुबारका 7 बार या मुईदो पढ़े तो खुदावंद ताला उस घर को सलामत रखेगा और जो चीज़ गायब हो चुकी है वो वापस मिल जाएगी। फिर रिपीट करें कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई ये चाहे कि उसकी कोई चीज़ गुम ना हो तो उसे चाहिए कि वो घर के चारों कोनों में 7 बार इसमें मुबारका या मुईदो पढ़े तो खुदावंद ताला उस घर को सलामत रखेगा और जो चीज़ गायब हो चुकी है वो वापस मिल जाएगी।
सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, ये था छोटा अमल अजीम सवाब। चीज़ें खो चुकी हैं, गुम हो चुकी हैं, बंदे खो गए हैं, गुम हो गए हैं, कहीं पे भी चले गए हैं। आपने सुन लिया कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। इसमें आज़म है आज का या हकीम हो, और आपको या हकीम हो जो भी कसरत से पढ़ेगा, या हकीम हो जो भी कसरत से पढ़ेगा, कोई तादाद नहीं है। तो जिस शख्स का काम पूरा ना होता हो, कोई भी काम करने जाता वो पूरा ही नहीं होता, कामयाबी हासिल नहीं होती। तो जिस शख्स का काम पूरा ना हो वो पाबंदी से इस इस्म को पढ़े, इंशाअल्लाह तो उसका हर काम पूरा हो जाएगा। कोई भी ऐसा शख्स है जो काम करना चाहता है, काम नहीं कर पाता, बिजनेस करना चाहता है, ठप हो जाता है, कोई भी काम करना चाहता है वो काम नहीं हो पाता, तो वो कसरत से या हकीमों पढ़ेगा या हकीमों पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके तमाम कामों में कामयाबी नसीब फरमाएगा। जो शख्स कसरत से या हकीमों पढ़ा करे, अल्लाह ताला उस पर इल्म और हिकमत के दरवाज़े खोल देगा। जिस शख्स का कोई काम पूरा ना होता हो वो पाबंदी से इस इस्म को पढ़ा करे, इंशाअल्लाह काम पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं और अपनी नादे अली की तरफ जाते हैं। नादे अली आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी मुश्किल काम हो, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर बेइंतहा कोई मुश्किल काम हो तब आपने ये करना है, बेइंतहा कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, तब आपने ये काम करना है। नादे अली का खुद बजाते खुद हमने किया हुआ है अपने घर में। जब एक मुश्किल आई थी और मौला अली मुश्किल कुशा के सदक़े में वो मुश्किल किस तरह से हल हो गई, हम बयान नहीं कर सकते, अल्फाज नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि जब आपके पास कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, परेशानी हो, तब आप इसको कीजिएगा। और वो क्या आपने करना है कि अगर किसी को कोई मुश्किल काम दरपेश हो या किसी गम में मुब्तला हो, तो उसको उस शख्स को 1000 मरतबा नादे अली पढ़े तो उसके मुश्किल काम जो है वो आसान हो जाएंगे और उसका गम जो है वो खुशी में बदल जाएगा। नादे अली आपने पढ़नी है 1000 मरतबा, 1000 टाइम्स। एक ही दफ़ा बैठकर दो बहनें पढ़ लें, 4 बहनें पढ़ लें, 1000 टाइम आप पढ़ें बैठकर नादे अली 1000 मरतबा। आपको कोई गम है वो खुशी में तब्दील हो जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल है, कोई बड़ी हाजत है वो आपकी कबूल हो जाएगी बवसीला है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, बवसीला नादे अली। फिर वही बताऊंगी कि कोई बहुत मुश्किल काम हो तब आप ये पढ़िएगा, 1000 मरतबा आपने नादे अली पढ़नी है। और फिर आप देखिएगा कि आप मुश्किल कुशा को पुकारेंगे मदद के लिए और मुश्किल हल ना हो, ऐसा नामुमकिन है। तो 1000 मरतबा नादे अली आप पढ़ें किसी भी मुश्किल के लिए। कोई भी आपको गम है तो वो गम खुशी में तब्दील हो जाएगा और आपकी मुश्किल, आपकी हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है यहाँ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फारूक भाई आज की ताज़ा तरीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे।